So all right guys, in today's through this presentation slide, I would like to discuss the methods involved in the biopsy of adrenocorticotropic hormone. So there are two methods. First one is ascorbic acid determination method and second one is isolated red adrenal cell method. So students are need to learn these two methods. First, how the ascorbic acid is related to the ACTH bioassay, and this one is the very simple method. Second one. So first we will talk about the ascorbic acid determination method, right? So in the biopsy of ACTH through the ascorbic acid determination method, first initially every student have to mention the few things on the about ACTH. That as we know, the ACTH adrenocorticotropic hormone, which is called corticotropin, it is a polypeptide tropic hormone. ये आपको याद करना पड़ेगा. That is made up of 39 amino acid and released from the secreted from the anterior pituitary gland. अब जब ACTH anterior pituitary से release होता है, then it goes over the adrenal cortex and from there it stimulates the releasing of corticosteroids. And corticosteroid is further responsible for metabolism of glucose, protein, lipid, and also responsible for suppressing the immune system and also useful in in the modulation of blood pressure. So what is the few things which you have to write in your answer sheet is ACTH is 39 amino acid polypeptide tropic hormone released from anterior pituitary gland, and ACTH once goes over the adrenal cortex responsible for further release of corticosteroid and which is responsible in the metabolism of these glucose, protein, lipid and suppressing immune system response and also in the blood pressure regulation. So how does the ascorbic acid is actually related? As we know, the adrenal gland is among the organs which is the highest concentration of vitamin C in the body. देखिए हमारी बॉडी में विटामिन सी का एस्कॉर्बेट फॉर्म में स्टोरेज इन लीवर में भी होता है एंड एड्रेनल ग्लैंड्स में भी होता है. तो उसी लाइन को यहाँ पे लिख रखा है कि द एड्रेनल ग्लैंड इज अमंग द ऑर्गन्स, लीवर की बात नहीं की, विद द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी. इंटरेस्टिंगली बोथ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, दोनों एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है किडनी में, दोनों किडनी में, एंड द मेडुला accumulate such high level of ascorbate. means adrenal cortex में itself storage होता है किसका, ascorbate का. और ये मान के चला जाता है, ये प्रूवन है कि ascorbic acid जो है, जो ascorbate है, that is acts as a cofactor in the synthesis of catecholamine biosynthesis. So what is catecholamine biosynthesis and stereoidogenesis? स्टीरियोआइडोजेनेसिस मींस कार्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस एंड कैटाकोलामाइन सिंथेसिस में आपका क्या यूज हो रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एसीटीएच भी कार्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो एसीटीएच डायरेक्ट क्या करेगा, एसीटीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेटिंग द लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. तो अब एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस को कम करेगा. तो अब पर्पज रेशनल इस बायोप्सी का क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एसीटीएच, ये मेन पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एसीटीएच डिक्रीज द एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन द एड्रेनल. और जब एसीटीएच एस्कॉर्बिक एसिड जो एड्रेनल में प्रेजेंट है उसका लेवल जब डिक्रीज होगा, तो कितना डिक्रीज हुआ वो हम डिपेंड करेगा, उससे हम क्या निकालेंगे कि सपोज करिए किसी एसीटीएच के कंसंट्रेशन पे उसका इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और किसी कंसंट्रेशन पे इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो वो कंपेयर करके हम एसीटीएच की स्ट्रेंथ को इन द रेफरेंस विद एस्कॉर्बिक एसिड हम उसको निकालेंगे. इसीलिए एस्कॉर्बिक एसिड मेथड डिटर्मिनेशन हम यूज करते हैं इन द बायोप्सी ऑफ ACTH. So administration of pituitary ACTH decrease the ascorbic acid present in the adrenal. The depletion of adrenal ascorbic acid is a function of the dose of ACTH administered. means ACTH का आप जितना ज्यादा डोज एडमिनिस्टर करेंगे, ascorbic acid का जो अमाउंट है वो उतना क्या होगा, कम होगा इन द adrenal. This relationship has been used for the quantitative assay of ACTH. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है अपनी आंसर शीट में.
अब देखिए इस बायोसे को प्रोसीड करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर सच स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन एंड द स्टैंड वॉट एवर वी प्रिपेयर द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन वी प्रिपेयर इन 3 फॉर्म्स, 3 स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन और 3 टेस्ट कंसंट्रेशन। तो स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन ए बी सी, इसी तरह आपका सॉल्यूशन दूसरा नाम दे सकते हैं ए बी सी, आपकी क्या होगी टेस्ट की होगी। तो सॉल्यूशन ए की जो स्ट्रेंथ है व्हाट इज दिस 300 MU ACTH, सॉल्यूशन बी इट इज 100 मींस आपको 3 कंसंट्रेशन में सॉल्यूशंस लेने हैं, राइट। तो 3 कंसंट्रेशन कौन कौन सी है 300, 100 एंड 33 मिली यूनिट। और सबसे स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन ये बना है दैट इज 5 यूनिट ऑफ टेस्ट या स्टैंडर्ड को डिसॉल्व करना है इन द 0.25 ml ऑफ 0.5% फिनॉल सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड विद 8.1 ml ऑफ 15% जिलेटिन सॉल्यूशन। तो ये आपको याद करना है, इसमें आपका कोई टेक्निकल ऐसा पॉइंट नहीं है। यहां पे आपको ये याद रखना है कि जो भी सॉल्यूशन आप ACTH में प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी 3 स्ट्रेंथ है 300, 100 एंड 33, राइट। तो आप देखते हैं आपने नाम दे दिया स्मॉल में S1, S2 और S3। S1 आपने 33 कर दिया, फिर डोज को इंक्रीज करते गए मिली यूनिट और ये मिली यूनिट 300। इसी तरह टेस्ट आप 0.5 ml सबक्यूटेनियस जब देंगे 33 मिली यूनिट को देना है, 100 मिली यूनिट का आपका 0.5 ml देना है एंड ऑल्सो 300 मिली यूनिट को आपको 0.5 ml देना है। सेम उसी तरह आपको टेस्ट में देना है। तो इसमें देखिए इसमें आपका पर्पज ये है कि आप सबसे पहले जो आप रैट्स लेंगे, पहली बात तो चूंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एंड्रोजन्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे मेल रैट्स लेंगे और प्रेफरेबली वो एटलीस्ट हमको 36 रैट लेने हैं, जो कि हम 60 तक भी ले सकते हैं। तो वो वेरी करेगा कि आप कितने एनिमल हैं, लेकिन मिनिमम देयर शुड बी 36 नंबर ऑफ रैट्स। और रैट को बिफोर 1 डे, मतलब जब आप बायो से स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड कर देना है। मींस उस रैट की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको सर्जिकली रिमूव कर देना है। तो अब आप जब सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, देखिए उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि अब आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। अब आप जितना ACTH बाहर से देंगे उतना आपका एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल, एस्कॉर्बेट का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अब आपने क्या किया, हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड रैट जो कि 1 डे प्रायर आपने कर लिया था, मेल रैट लिए इतने वेट के लिए 36। अब आपने इसको डिवाइड किया 6 ग्रुप में, 6 ग्रुप में आपने 6 रैट ईच ग्रुप में बांट दिए। 3 डोजेज आपने इसकी सबक्यूटेनियस दी टेस्ट की और 3 डोजेज ये 3 डोजेज हैं। इसको देने के 3 घंटे बाद आपने एनिमल को एनेस्थेटाइज्ड किया और उसकी दोनों एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर लिया। अब एड्रेनल ग्लैंड का आपने जो एक्सट्रेनियस टिश्यू थे या जो भी फैटी मटेरियल था उसको क्लीन कर लिया, वो वेट कर लिया आपने एड्रेनल ग्लैंड का। उसके बाद आपने रैट को सेक्रीफाइस करके, एक्चुअली देखिए आपने एनेस्थेटाइज करके एड्रेनल ग्लैंड निकाले, उसके बाद सेक्रीफाइस करके ना आपको प्रॉपर एक रीबैक, अपने एक स्ट्रेंथ देनी है अपने एक्सपेरिमेंट को, जस्ट ये चेक करके कि क्या वो रैट हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड था या नहीं। तो द रैट्स आर सेक्रीफाइज्ड एंड द स्कल ओपन टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ हाइपोफाइसेक्टोमी। इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड जो आपने निकाली थी दैट यू विल कीप फॉर होमोजेनाइजेशन फॉर along with 200 milligram pure sand and 800 ml of trichloroacetic acid, and from there the ascorbic acid determination will be processed through the various instruments, so through the calibration curve, and the mean and potency ratio of test and standard is calculated with the 3.3 3 plus 3 6 point bio assay। तो ये आपका एक सिंपल मेथड है, कौन सा, ACTH के डिटर्मिनेशन का, राइट। तो इस तरीके से आप ACTH का डिटर्मिनेशन करेंगे। आपकी मेन जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको रैट को हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड रैट यूज करना है, प्लस ये 3 वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा, प्लस तीनों की कंसंट्रेशन आपकी अलग अलग लेनी है, राइट, स्टैंडर्ड और टेस्ट की। इसी तरह हमारा जो सेकंड मेथड है वो ये कहता है आइसोलेटेड रैट एड्रेनल सेल। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एल्बिनो रैट लिया आपने और उसकी एड्रेनल सेल्स आपने आइसोलेट की, सस्पेंशन बनाया और सस्पेंशन में आपने 0.9 ml का सस्पेंशन बना के उसमें 0.1 ml स्टैंडर्ड ऐड किया और दूसरे में 0.9 ml में 0.1 ml टेस्ट किया। अब दोनों अलग अलग को आपने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 2 आवर और कॉर्टिकोस्टेरॉन लेवल को मेजर किया थ्रू द फ्लोरोमेट्रिक डिटर्मिनेशन टेक्निक्स। तो
तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड है, इसमें आप एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू नहीं कर रहे हो, इसमें डायरेक्ट आप एड्रेनल सेल निकाल रहे हो और वहां पे हम उसको होमोजेनाइज करके उसको हम डिटरमाइंड एस्कॉर्बिक एसिड को थ्रू द कैलिब्रेशन करते हैं, राइट, एंड 6 पॉइंट बायोएसए. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोएसए ऑफ ACTH. और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल से कंटेंट को लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई भी बेनिफिट होता है और फिर भी अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.